afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. चलो ठीक है। मैं क्या हम स्टोरी टेलिंग कर रहे थे लास्ट क्लास में। स्टोरी टेलिंग मैंने रिक्रिएशन कराया था ना मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। मैंने स्टोरी टेलिंग जो कराई थी बच्चों, वो मैंने उसके अकॉर्डिंग कराई थी ना, मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग रिक्रिएशन कराया था मॉडर्न वर्ल्ड का, हाँ, है ना। ठीक है, मैंने पहली एक्टिविटी ये कराई थी कि तुम्हें मैंने गौतम बुद्ध की एक वीडियो देखने के लिए बोला होगा। यही एक्टिविटी हुई नहीं है क्लास के अंदर? नहीं मैम। ये नहीं हुई है ना? नहीं। ठीक है। हाँ, इस पे बियॉन्ड एग्जाम की वेबसाइट खोलो और उस पे ना सर्च करो गौतम बुद्ध, स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध। उसे 1 मिनट देखो, फिर मेरे से दोबारा से बात करना। नेक्स्ट स्टेप में उसमें बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, अभी यहाँ पे सर्च करना है स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है? हाँ। ये जो फर्स्ट स्टोरी आ रही है ना बेटा, इसको देखना है। ठीक है, ये वाली स्टोरी तुम लोग देख लो, और जब देख लोगे मुझे बता देना, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, ठीक है? हाँ मैम। देख लो ये कितने मिनट की है, 5 मिनट की है गेस, ठीक है? मैं 5 मिनट बाद आती हूँ और मुझे बताना फिर क्या समझ में आया, ठीक है? आराम से बैठ के देख लो। Gautam Buddha. Gautam Buddha. Gautam Buddha was born to the king and queen of Kapilavastu as Prince Siddharth around 566 BC. Soon after his birth, an astrologer predicted that he was destined to live his life as a saint by abdicating the throne and giving up all worldly pleasures. His parents Shuddhodana and Maya Devi were shattered by the news and decided to prevent this from happening by keeping a close watch on him and sheltering him from the outside world. His parents hoped that he would get used to the luxuries of the palace and therefore never give it up. At age 16, he was married to Yashodhara, the beautiful daughter of a nobleman. Siddharth's curiosity grew with age, and one day he asked his charioteer to take him on a tour of the city. The first person they came across was an old man who seemed weak and frail. The charioteer explained that along with age comes weakness and failing health. He then came across a sick man who was in great pain, and finally, a procession carrying a dead body to the cremation ground. He was told that everyone would die one day and leave this world. At the end of the tour, he chanced upon a sage who appeared calm and serene. And after inquiring, Siddharth was told that such men give up their worldly possessions in search of inner peace. Siddharth was deeply troubled by his first experience of the outside world. He decided that to answer all his questions about life and death, he would have to leave the palace and give up his palatial life. At the age of 29, Siddharth left the palace one night while his wife and son were still sleeping. After trying different ways to find the path of truth, he finally reached the city of Bodh Gaya and started meditating under a large fig tree. After 49 days of meditation, at the age of 35, Siddharth attained enlightenment. From that day on, he was known as Buddha, or the Awakened One, after the Bodhi tree under which he meditated. Gautam Buddha shared his knowledge with 5 sannyasis who meditated with him and also traveled across the country teaching the key principles of Buddhism known as the Noble Truth. They are: the world is full of suffering and misery. Desire is the cause for all suffering and misery. Suffering and misery can be abolished by removing desire. Desire can be overcome by following the Eightfold Path. This includes right views, right thoughts, right speech, right action, right livelihood,
right efforts, right mindfulness, and right meditation. Several Buddhist monuments stand all over India to this day, such as the world renowned Ajanta and Ellora caves, the Kanheri and Karla caves, as well as universities at Sanchi and Amravati. Gautam Buddha passed away in 483 BC. Though he lived centuries ago, his birthday is still remembered as Buddha Jayanti in India. The Bodhi tree is still worshipped as a symbol of enlightenment even today. सबको समझ में आई स्टोरी? स्टोरी समझ में आ गई सबको? हाँ मैम, थोड़ी थोड़ी। मुझे थोड़ा ब्रीफ करो, क्या समझ में आया तुम लोगों को? मैम, वो जो गौतम बुद्ध रहते हैं ना, वो एक प्रिंस रहते हैं। उनका नाम पहले सिद्धार्थ रहता है और वो बाद में उनका मैरिड पीरियड होता है ना, तो एक रात वो मतलब अपने वाइफ को बिना बताए घर से निकल जाते हैं और वो ट्री के नीचे बैठते हैं और 49 डेज के बाद उधर बैठ के वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। और 49 डेज के बाद मतलब 5 सन्यासी लोग लगते हैं उन लोग के ऐसे। हाँ, तब से वो उनको गौतम बुद्ध ऐसा बोला जाता है और उनके बर्थडे को बुद्ध जयंती क्या कहा जाता है। मैं इतना समझा। ओके, वेरी गुड। तो व्हाट वर द 3 circumstances जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई? व्हाट वर द 3 circumstances which he saw when he came out of the palace? What were the 3 incidences which he saw that changed his life? What are these 3 incidences? कौन से 3 incidences है जिनकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी? इंसिडेंट्स क्या हुए थे उनके साथ? पहले ये नहीं हुआ था कि उन्होंने बाहर किसी की डेथ देखी थी, पोवर्टी देखी थी, और क्या देखा था? गरीब को देखा था ना, पोवर्टी देखी थी, गरीबी देखी थी। हाँ, और क्या देखा था उन्होंने? सिकनेस देखी थी, बीमारी देखी थी, और क्या देखा? डेथ, वीकनेस, पुअरिटी और सिकनेस। ठीक है, क्या तुम्हें स्क्रीन शेयर पे अब देखो, अब एक टैब शो हो गया जहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है? 7 questions, 6 questions are there. First question asks, he was born in which place? So he was born in which place? कपिलावस्तु, है ना? क्या? कहाँ पे? कपिलावस्तु। हाँ, कपिलावस्तु। Okay, next question. What has Maharshi told his father about the future of the little Buddha? क्या बताया था महर्षि ने? महर्षि ने क्या बताया था कि छोटे बुद्धा का फ्यूचर क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि वो बड़े होके मतलब संत बनेंगे और मतलब बहुत क्या बोलते हैं, लोगों को ज्ञान मतलब हाँ वो सब देंगे। हाँ, तो बेसिकली द महर्षि टोल्ड हिज फादर दैट ही विल वन डे ही विल बिकम अ सेंट, ठीक है? And he will leave all his privileges and went into the forest for people's what? लोगों की हेल्प करने के लिए क्या बोलेंगे? Put his life into, क्या बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? बोलो। People help, okay? ठीक है। For next question, क्या नाम है? अश्विनी आंसर देना। Why he was not allowed to leave the palace? Why he was not allowed to leave the palace? पैलेस से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? क्योंकि उसके मम्मी पापा को डर था कि जब मतलब ये पैलेस छोड़ के जाएगा तो वो संत बनेगा ऐसे। Yes. Next question, संगीता. When did he escape the palace and how? किसने अपना escape किया था? जब उसने गरीबी और देखा तब उसने रात को घर छोड़कर गया। उसने वो 3 incidents देखे तो he felt bad. He gave a thought about all the incidences and then he decided that he will start living for the people. He will leave all his privileges and went and put his life in the people's help. Okay, ठीक है. Next, Rupali, what 3 incidences changed his life and forced him to become a monk? Why did he become a monk and what were the 3 incidences? Poverty, sickness, and death. Poverty, sickness, and these 3 incidents make him think about what?
Did he feel guilty about it? That he's living in a privileged palace and this and thing. He felt guilty about it, or what was the reason? What a thought, what type of thought he gave to himself that अब टाइम आ गया मुझे जाना है. पूरी रात सोचते रहे ना, जब वो 3 चीजें देखकर आ गए उसके बाद घर आने के बाद सोच रहे थे ना पूरा टाइम. What was that thought? उसे बुरा लग रहा था. हाँ, he felt guilty about it, right? Okay. तो when did he attain enlightenment? तुम ही आंसर दे दो. लास्ट क्वेश्चन है. When did he attain the enlightenment? मैम इनलाइटमेंट म्हणजे मतलब 14 days के बाद ना. तुम्हें सारी चीज लाइफ का ज्ञान मिल जाता है. दैट इज एनलाइटमेंट. ठीक है. हाँ मेडिटेशन के थ्रू मिलता है बेसिकली. हाँ. बताओ. 49 days. When he was 49, तो where he was when he attained the enlightenment, he was in the peepli under the tree. जो जिस ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने enlightenment ली थी, that is a peepli tree, right? ठीक है. मेरे को मेन ये था, हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं. क्वेश्चन पूछने का मेन फोकस ये था कि तुम्हें स्टोरी समझ में आनी चाहिए. अब स्टोरी समझ में आ गई है. यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू नीड टू क्रिएट. पहले 3 इंसिडेंट्स कॉपी में लिख लो. पॉवर्टी, ठीक है, सिकनेस एंड डेथ. दीज आर द 3 पैरामीटर्स. अब इनको लिख के कॉपी में क्या करना है? तुम्हें स्टोरी को रिक्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड. ये स्टोरी तुम्हें इसलिए दिखाएगी ताकि तुम सोच सको. हाँ. और तो अब सोच लिया, तो अब सोचने के बाद इसको क्या करोगे? इस स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग रिक्रिएट करोगे इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है. जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ. मैंने एक बैच में बच्चों को बोला था कि रिक्रिएट करो स्टोरी को, तो उन्होंने रिक्रिएट किया. तो ये छोटे से स्क्रीन दिख रही है सबको ना? हाँ. तो दिख रही है मैम. बच्चे ने क्या किया? उसको ऐसे लिया कि एक बर्ड है. ठीक है. अब बर्ड्स आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पॉवर्टी तो अभी भी है, गरीबी अभी भी है, सिकनेस अभी भी है, डेथ अभी भी होती है. ऐसा तो है नहीं कि हम प्रिविलेज हो गए किसी चीज में, राइट? बट सिचुएशन डिफरेंट हो गई. ही वॉज अ किंग. ही वॉज सो प्रिविलेज कि उनको उस तरीके से रखा गया सालों तक ताकि वो बाहर की दुनिया ना देख पाए. क्योंकि राजा को क्या डर था कि वो बाहर चला जाएगा तो उसे ये सब बारे में पता चल जाएगा और फिर से दुखी हो जाएगा, और दुखी होके वो लोगों अपना जीवन लोगों के लिए दे देगा. He will become a monk. वो लोगों की हेल्प करने लग जाएगा, लोगों को ज्ञान बांटने लगेगा, जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ क्या बना सके? बेहतर बना सके. अब इसी स्टोरी को अब तुम सोचो कि मैं इसको स्टोरी को रिक्रिएट कैसे करूं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड. हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं. वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी. वो घर से बैठ के भी मॉन्क बन सकते थे. जैसे आधे मोस्ट ऑफ द लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए ना. घर से बैठ के मैं ऑनलाइन तुम्हें स्पीच दे सकती हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ बेटर बन सके, राइट? That's why he became a monk. He left all his privileges and lived like a sant. So now, अब इसको तुम अपने मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कैसे लेके जाओगे? थिंक अबाउट अ स्टोरी, थिंक अबाउट अ कैरेक्टर. ठीक है. स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं तो एक स्टोरी सोचो कि अब ये तीनों इंसिडेंट तुम्हें उस चीज में डालने हैं और नए तरीके से सामने लेकर आने हैं. कैसे डालोगे? क्या एक स्टोरी बनाओगे? मैं इसकी एक बार थोड़ी डिफाइन कर देती हूँ इस बच्चे ने कैसे लिखी है. इस बच्चे ने क्या किया कि उसने क्या किया, एक बर्ड के ऊपर लिया कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे आसपास क्या चीज हो रही है? बर्ड्स मर रही हैं. अब हमें ज्यादा स्काई में बर्ड्स नहीं दिखती, पिजन्स नहीं दिखते. रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज है ना. तो स्टोरी ऐसे बनाई कि वो एक बारी, वो क्या है, वो एक टोनी नाम का लड़का है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का बेटा है. ठीक है. तो उसने क्या, उसको सब प्लांट्स और एनिमल्स की पूरी खबर है. ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स अगर ऐसी पोस्ट से आते तो मुझे नॉलेज होगी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में. तो वो घूमने गया तो उसने क्या देखा कि बर्ड्स है ना, उसके एक बर्ड आई, उसके सामने गिर गई और तड़प रही है रोड पे. ठीक है. तो उसको बुरा लगा. तो उसको वो चीज इतनी बुरी लगी तो उसने उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी, ये पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये पता करने में पता चला कि मोबाइल टावर ज्यादा लगने की वजह से हार्मफुल रेज निकल रही है, जिसकी वजह से बर्ड्स खत्म होती जा रही हैं. तो देन ही टुक अ डिसीजन कि वो अब क्या करेगा. जैसे गौतम बुद्ध ने डिसीजन लिया था कि वो अपनी पूरी लाइफ उनके अच्छे कामों के लिए लगा देंगे, लोगों के भले के लिए लगा देंगे, वैसे ही उसने डिसीजन लिया कि वो बर्ड्स की भलाई के लिए क्या करेगा. वो ऑफिस, बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं, ऑफिसर्स मिनिस्टर्स के पास जाएगा, ऐसे पावर प्लांट्स लगवाएगा जहां पे ज्यादा कम रेज यूज होती हो
और बर्ड्स के लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट बना सके जहाँ पे बर्ड्स मरे नहीं, ठीक है। ये उसने अपनी स्टोरी लिखी, एक बच्चे ने खुद क्लास में स्टोरी लिखी थी। तो आई ऑल्सो वॉन्ट कि तुम भी, देखो उसने इंस्पिरेशन ली ना गौतम बुद्ध से कि वो अपनी लाइफ बर्ड्स के लिए लगा देगा। उसने अपनी पूरी लाइफ बर्ड्स के ऊपर लगा दी, उसने अपना सारा पैसा वहीं पे लगा दिया कि वो बर्ड्स के लिए ऐसी जगह बना पाए जहाँ पे ऐसे हार्मफुल रेज ना हो, ठीक है, हम कम से कम। और उनके लिए उसने क्या खुलवाया, फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, उसने बर्ड्स के लिए बड़े बड़े पॉन्ड्स भी बनवाए ताकि वो वहां से पानी पी सके, ठीक है, उनके पास कोई कमी ना हो। उसने बर्ड्स के लिए अपनी लाइफ दे दी। Similarly, you can also come up with a story where you can get inspiration from गौतम बुद्ध, ठीक है। उनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लो, 2 मिनट लो, सोचो क्या स्टोरी लिखोगे, क्या कैरेक्टर को नाम दोगे, मुझे थोड़ा समझाओ। अब मुझे पहले फटाफट आइडिया दो कि तुम लोग कैसे स्टोरी बिल्डअप करोगे। मैम हम वाटर के फिश के ऊपर बनाएंगे मतलब एक लड़का रहता था, एनिमल और फिश। वो उनकी पूरी टीम घूमने के लिए गई थी, तो उन्होंने देखा कि एक फिश बहुत एक लायन है, उसने बहुत मतलब पानी पिया है वो नदी का, और फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में बह रहा है, तो पानी पियो तड़फड़ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम लोग एक काम करो, इसके नोट्स बना लो 7 पॉइंट्स, ठीक है, कॉपी में लिख लो। अच्छा, मैं कह रही थी कि अश्विनी सुनो, हाँ मैम, मैं तुम्हें एक डॉक भेज दे रही हूँ, ठीक है, वहीं पे तुम अपनी जो भी पॉइंट्स लिखोगे 7 पॉइंट्स और जो स्टोरी बना रहे हो वहीं पे लिख के मुझे सेंड कर देना। वो फोल्डर परमानेंट रहेगा, उसी में तुम्हारा काम अब से जाएगा। पेन पेपर का मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं लूंगी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो सीधा काम डिजिटल कॉपी में ही करो। डिजिटल कॉपी मतलब वो डॉक में ही सीधा सीधा लिख देना, मैं वहीं पे करेक्शन कर दूँ। फाइन इनफ? हाँ मैम। तो अपने थॉट्स गैदर कर लो, समझ में आ गया ना? पहले कैरेक्टर चूज करो, उसके सराउंडिंग चूज करो, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी बनाना शुरू करो। आई डोंट वांट कि बहुत लंबी स्टोरी बना दो, बट 5 से 8 लाइन की भी बनाओगे, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय।